ایران راضی ہو گیا تو آبنائے ہرمز سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا ناکہ بندی ختم اور آبنائے ہرمز ایران کے لیے کھل جائے گی، آپریشن ایپک فیوری بھی ختم ہو جائے گی۔ ایران راضی نہ ہوا تو ایک بار پھر بمباری شروع کر دی جائے گی اور بدقسمتی سے اب کی بار ہونے والی بمباری پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی، برینٹ فیوچر کی قیمت 9% کی کمی کے بعد 99.8 ڈالرز فی بیرل پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی امریکی میڈیا کی اس خبر کے بعد آئی جس میں کہا گیا کہ امریکہ اور ایران ابتدائی امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ایک صفحے پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت پر معاہدے پر پہنچ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا ایکزیوس نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے لیے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے۔ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا، جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنے کا مشورہ، کہا کہ آبنائے ہرمز میں تصادم کے دوران 10 عام شہری ہلاک ہوئے۔ امریکی فوج کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول ناقابل قبول قرار۔ ایرانی صدر کا امریکہ کو دھمکیوں سے باز رہنے کا پیغام، واضح کر دیا کہ جبر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ عراقی وزیر اعظم سے گفتگو میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکی مطالبات ناقابل قبول قرار دے دی اور کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور اس کی یک طرفہ شرائط مان لے۔ اگر وہ منطقی بات کریں تو بات چیت ممکن ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف۔ جو پاکستان نے عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے یہ خدمت انجام دی، پختہ عزم کے ساتھ یہ بات چیت کے دروازے کھولے، یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت جلد دیر پا امن بدلنے کے لیے پر امید، مذاکرات میں پیش رفت سے خطے میں مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے گا۔ پاکستان عالمی سطح پر امن، مکالمے اور اعتماد کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 47 سال کے بعد ایران اور امریکہ براہ راست بات چیت کے لیے اسلام آباد میں آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ پاکستان کی دعوت پر دونوں ممالک کی قیادت کا ایک پلیٹ فارم پر آنا عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے فریقین مذاکرات کی میز پر آئے۔ شہباز شریف کی امن کے لیے سعودی عرب اور چین کے کردار کی تعریف، مذاکرات میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی کاوشوں کو سراہا۔ مذاکرات میں کامیابی خطے میں پائیدار امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ پاکستان کی ایک اہم خدمت ہے جو اس نے اسلام اور عالمی امن کے لیے انجام دی۔ سفارتی کاوشوں میں ترکی سمیت دیگر برادر ممالک نے ساتھ دیا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، ارض مقدس کا تحفظ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کی بنیاد قرار۔ پاکستان اپنا فرض جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر الحمدللہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اور ان کشمیریوں کی اپنی خواہشات کے مطابق ریفرینڈم کے ذریعے آزاد نہیں ہوگا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں ٹینشن رہے گی۔ پاکستان مشرق وسطی میں انسانی جانیں بچانے میں کامیاب رہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا خطے میں امن و استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے سفارتی کاوشیں جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان کا جموں کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر اصولی موقف دو ٹوک ہے۔ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں علماء کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں فوجی آپریشن عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ پروجیکٹ فریڈم معطل، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کا دعویٰ اور کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کا خیر مقدم، تنازعات کے پر امن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ تازہ ترین پیش رفت خطے میں دیر پا امن و استحکام کے معاہدے پر منتج ہوگی۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کا اقدام جرأت مندانہ قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے امریکی اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں غیر قانونی قرار دی تھیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے براہ راست مذاکرات ضروری قرار۔ چینی وزیر خارجہ کا امریکہ سے فوری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران
सऊदी अरब वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का बनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से टारगेट किया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरे रोज मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों का दावा। फजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वजारत दिफा का एक्स पर पैगाम। UAE ने ईरान को जादे अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर कुरकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मजम्मत UAE के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर ने वाज़ेह किया कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि अहम इक़दाम उठाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक UAE को अमरीकियों और सहमियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीकियों और सहमियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पॉम्पियो से मुतालिक बयान पर ट्रंप के दिफा में सामने आ गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। सदर का असला मौक़िफ़ ईरान के मुमकिन खतरे से मुताल्लिक़ था, खासतौर पर उन इलाकों के लिए जहां बड़ी तादाद में ईसाई और कैथोलिक आबाद है। मार्को रूबियो की वज़ाहत। पॉम्पियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अमन की तबलीग चर्च का मिशन करार और वाज़ेह किया कि तनकीद की परवाह नहीं। चर्च ने हमेशा इतनी हथियारों के खिलाफ बात की। हथियार उठाने के बजाय मुज़ाकरात करना बेहतर होता है। जंग के जरिए हथियार साजी की फैक्ट्रीज अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। पैसा जंग पर खर्च करने के बजाय इंसानों की मदद और दुनिया से भूख के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। Among the most climate vulnerable countries in the world, facing increasingly severe floods, heat waves, water stress and dangerously poor air quality. डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ब्रीफ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस CEO डॉन मीडिया ग्रुप नाज आफरीन सहगल लाखानी ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को तेजी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। 22 का फ्लड आया, was a devastating flood. 25 पिछले साल अक्टूबर में we again had to realize the consequences of the flood. साल 2022 के सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तग़य्युर के नुकसानात से बचने के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। ग्रीन इकॉनमी की जानिब मुंतकिल होना वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया। वाज़ेह किया कि माहौलियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा माहौलियाती आलूदगी से मुतासिर होने वाला मुल्क है। ऐसे में ब्रीथ पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म निहायत अहम किरदार अदा कर रही हैं। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का ब्रीथ पाकिस्तान पर डॉन ग्रुप को मुबारकबाद, हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है कि जो कुछ आपने उस वक़्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत करार दे दिया और वाज़ेह किया कि मार्का हक की अजीम पता ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगारी वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। मार्का हक से वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाकर वतन अजीज पर हमले की नापाक मंसूबाबंदी की। इस मकसद के लिए मीडिया पर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। भारत के खिलाफ जंगी कामयाबी पर ISPR ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह किया कि मार्का हक एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम के वाक़े को बैनुल-अक़वामी अदालत क्यों नहीं ले गया। पूरे जश्न को जो है वो एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है। पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मार्का हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लाहौर के लिबर्टी चौक पर कॉन्सर्ट हुआ। 10 मई को तकरीब में मरीम नवाज शरीक होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का ऐलान। दुश्मन की हर चाल, हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू, हमारी जान वतन के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हर मुश्किल, हर तूफान में मुल्क के साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैगाम। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। तो याद रखें कि उन्वान से जारी प्रोमो में मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा FC बलोचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। आला सियासी शख्सियात, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को अपने आबाई इलाके में मुकम्मल एजाज के साथ सिपुर्द खाक किया जाएगा। मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। कौमी असेंबली का इजलास 11 मई को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक के मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 1 दिन की कलम छोड़ हड़ताल। बेशतर महकमों में सरकारी उमूर ठप। विफाक के साथ आईनी और मुआशी मामलात पर स्पीकर की सरबराही में कमेटी कायम। वजीर तालीम, वजीर कानून, मुशीर खजाना और ऑपोजिशन लीडर कमेटी का हिस्सा। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो गया। 3000 से ज्यादा मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब्दील हुआ। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर हॉस्पिटल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीजों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। पाकिस्तान का मजीद LNG के लिए स्पॉट खरीदारी का फैसला। आलमी कंपनी से 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 7 मई तक बोलियां तलब कर ली। उसी दिन ही बोलियां खोल दी जाएंगी। पहले कार्गो सप्लाई 12 से 14 मई तक रखी गई है। दूसरे LNG कार्गो की सप्लाई 24 से 26 मई के लिए होगी। बरसों से बंद डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट बहाल हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और वजारत दिफा को खराज तहसीन। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 19 मई को समाअत होगी। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी की शदीद लहर। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म। पंजाब में गर्म मौसम के साथ गर्द आलूद हवाएं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलू। सिंध में 11 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। दादू, जेकबाबाद, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। भारतीय पंजाब में यके बाद दीगरे 2 धमाके। जालंधर BSF हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद डिलीवरी बॉय के हवाले से कहा गया कि डिलीवरी स्कूटर धमाके से तबाह हो गया। डिलीवरी ड्राइवर और BSF एहलकार शदीद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक खालिस्तान ग्रुप ने दोनों धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मशरिकी पंजाब में खालिस्तान ग्रुप्स का असर और रसूख बढ़ने लगा। UAE की रियासत रास उल खैमा के बुलंदोबाला पहाड़ों पर पाकिस्तानी नौजवान ने जान पर खेलकर फिलिपाइनी खातून की जान बचाई। पाकिस्तानी गाइड फैसी शिलमानी गर्मी की शिद्दत से बेहोश होने वाली फिलिपाइनी खातून को 3 घंटे तक कांधों पर उठाकर पहाड़ से नीचे उतार लाई।
चीन के शहर शियानिंग में रंगारंग नाइट शो का इनेकाद, ड्रोन से आसमान जगमगा उठा, रिवायती फूलों से सजे अफराद और लालटेन उठाई घास में झील के किनारे पर परेड की, फनकारों ने परफॉर्मेंस से समा बांधा। और न्यूयॉर्क में मैट गाला 2026 का इनेकाद, ग्लैमर, तख्लीकी सलाहियतों और आला अक़साम का अंदाज पेश किया गया। रेड कार्पेट पर मारूफ शख्सियात के जलवे देखने वाले मबहूत हो गए।